Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today, we are going to start with a new chapter, chapter number 9, Biomolecules. So let's start first of all with what are biomolecules. Biomolecules are the chemicals or molecules present in the living organisms. So living organisms के अंदर जो molecules present हैं, जो living जो material present है, that's called as the biomolecules. So जितने भी biomolecules को अगर हम sum total कर रहे हैं तो जितने भी compounds हैं, ions हैं, cells के अंदर जो present होते हैं, that's called as the cellular pool. बायोमोलिक्यूल्स जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कार्बन के, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली दे आर द बायोमोलिक्यूल्स. Hence the chemistry of living organisms is organized around carbon. तो जितना भी हमारा जो भी living organisms के compounds हैं they are the carbon based compound. That's why carbon is the most versatile and the most predominant element of life. For the living organisms the most predominant element is carbon. Like we can compare here, this is given in your NCERT textbook also, like in hydrogen in non-living in earth crust it is 0.14, but in living matter it is 0.5. Carbon it is 0.03 as you know in the atmosphere, but in the living matter as you can see here it is 18.5. Oxygen in non-living earth crust is 46.6, but in the living matter it is 65. Nitrogen, as you know, it's very less in the earth's crust, but in the living matter it is 3.3. Very less in quantity, that is 0.03, but in living matter it comes to 0.3. And so on. There we can compare the presence of these elements in the non-living form, that is in the earth crust, or in the living matter. Now next, we move on to, there are two different types of biomolecules. As I told you that biomolecules are the organic compounds, but they have the inorganic elements also which are present in the body, like the minerals, the gases and the water. But biomolecules include the organic compounds like the carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, enzymes, nucleotides, nucleic acids and vitamins. So we'll talk about them one by one. Biomolecules are further categorized into two groups, that is micromolecules and मैक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रो एज द नेम इंडिकेट्स जो कि छोटे हैं साइज में, दैट इज जिनका जो साइज रहता है लो मॉलिक्यूलर वेट रहता है 10,000 डाल्टन से कम रहता है, और मैक्रोमोलिक्यूल जिनका साइज जो है 10,000 डाल्टन से ज्यादा रहता है, दे आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट और व्हाट वी कॉल देम एज इज मैक्रोमोलिक्यूल्स. नाउ the micromolecules include the minerals, gases, water, sugars, amino acids, and nucleotides, while the macromolecules include the polymers of the micromolecules in the form of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. Now, macromolecules are what we generally call as the biomolecules. Now, first, when we talk about macromolecules, you must understand few terms. Like I told you, these are generally the polymers. So you must understand what is monomer and what is polymer. When I talk about monomer, monomer means single units. As they have shown here, you can see it's a beautiful example we have given here. That is, there are monomeric unit. बहुत छोटे छोटे units हैं और उनसे मिलकर अलग अलग टाइप के मोनोमर से या सेम टाइप के मोनोमर से मिलकर जो बन रहा है that is called as the polymer. राइट. सो सिंगल यूनिट की जो एग्जिस्टेंस होती है, जो कि सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, दैट्स कॉल्ड एज द मोनोमेरिक यूनिट. और जब वो मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़कर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, देन दैट मैक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर. नाउ द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स. तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे कॉमन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हैं हमारे प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, polysaccharides and lipids. Now, proteins, as you know, are made up of amino acids. What is the function? It performs the function of being the basic structural and functional unit of the cell. So, cell के आपको पता है, cell membrane का हमने structure discuss किया, तो आपको पता है proteins का बना होता है, enzymes proteins के बने होते हैं, hormones आपने discuss किए proteins के बने होते हैं. तो proteins basically structure and function of the cell को maintain करने में help करते हैं. DNA is made up of deoxyribonucleotides. As you know, DNA stands for DNA is deoxyribonucleic acid. It is a polymer of the building block. That is, इसका monomeric unit क्या है? इसका monomeric unit है deoxyribonucleotides. And deoxyribonucleotides जो है
और डीएनए जो है वो क्या करता है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। आरएनए विच स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके मोनोमेरिक यूनिट्स हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए जैसे मैंने आपको बताया था, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आप ये जो सेकेराइड देख रहे हैं, दिस हैज कम फ्रॉम द वर्ड सेकेरीन। सेकेरीन स्टैंड्स फॉर, दिस वर्ड सेकेराइड स्टैंड्स फॉर शुगर। सो पॉली, पॉली का मतलब मेनी, सो मेनी यूनिट्स ऑफ शुगर। सो ऑब्वियसली ये किस चीज से बना हुआ है, ये पॉलीमर है शुगर्स का। तो ऑब्वियसली इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, एक सिंगल शुगर मोनोसेकेराइड, मोनो मींस वन। सो वन यूनिट ऑफ शुगर से मिलकर बहुत सारे जब इकट्ठे जुड़ जाएंगे तो बनेंगे पॉलीसेकेराइड्स, जिनको हम जनरल लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। देन they are the storage form of energy. As you know, plants store form they are storing energy in the form of starch, while animals store in the form of glycogen. तो ये storage form of energy है। lipids जिनको हम fats भी कहते हैं, तो ये बने हुए हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए हैं। ये है हमारे स्टोरेज करते हैं एनर्जी को। आपको पता है कि फैट्स भी हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में एज यू नो स्टोर होते हैं। सो ये भी हमारी बॉडी का एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में सबसे पहले। तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। These are made up of further three components, as you can see, the phosphate group, the sugar and the nitrogenous base. So अगर हम खाली नाइट्रोजनस बेस और शुगर को अगर हम ले रहे हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बट अगर हम उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। Now, in the case of DNA, the sugar will be deoxyribose sugar. In the case of RNA, the sugar will be ribose sugar. लेकिन नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट और शुगर तीनों चीजें न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट रहती हैं और इन्हीं से मिलकर, इन्हीं बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनते हैं डीएनए और आरएनए। इसीलिए उन्हें कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली अगेन मींस मेनी, तो बहुत सारे ऐसे यूनिट से मिलकर बनेगा एक डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल। नाउ शुगर, जैसे मैंने आपको बताया, इन द केस ऑफ डीएनए द शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इन द केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज शुगर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज देयर इज सी, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पोजीशन यहाँ पर दिख रही है आपको। तो यहाँ पर जो आपको पेंटागन स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन जो कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस जो आ रहा है बेसिकली कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका डिफरेंस इन द H एंड OH। यहाँ पर एक H कम है सो दिस इज डीऑक्सी, और यहाँ पर एक O एक्स्ट्रा प्रेजेंट है सो दिस इज राइबोज, व्हाइल दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस की। तो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनको, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है वो डबल रिंग कंपाउंड है, जबकि पिरिमिडीन्स सिंगल रिंग कंपाउंड है। प्यूरीन्स के लिए हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। जैसे आप देख सकते हैं एडेनिन एंड गुआनिन दोनों ही डबल रिंग कंपाउंड हैं। ऐसे ही पिरिमिडीन के एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडेनिन और गुआनिन ये दोनों ही डीएनए में और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट हैं। लेकिन सिमिलरली साइटोसिन इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो ये तीन हो गए, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। दीज आर द थ्री नाइट्रोजन बेसिस जो कि प्रेजेंट हैं डीएनए में भी और आरएनए भी। लेकिन थाइमीन एंड यूरेसिल ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहते हैं डीएनए और आरएनए में। थाइमीन प्रेजेंट रहता है डीएनए में, जबकि थाइमीन आरएनए में एब्सेंट रहता है। यूरेसिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में, लेकिन यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट रहता है। तो होता यहाँ पर यह है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपस में पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन। तो ये डबल रिंग कंपाउंड पेयर करेगा एक सिंगल रिंग कंपाउंड के साथ, थाइमीन के साथ, जबकि गुआनिन पेयर करेगा विद साइटोसिन, राइट।
तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में पेयर करते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमीन आपस में पेयर करते हैं इन द डीएनए। लेकिन क्योंकि आरएनए में थाइमीन एब्सेंट है, दैट्स व्हाई एडेनिन इन आरएनए विल पेयर विद यूरेसिल और ग्वानिन एज यूजुअल विल पेयर विद साइटोसिन। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन विद अ डबल बॉन्ड, while guanine always pairs with cytosine with a triple bond. Now, let's talk about the deoxyribonucleotides. So, as I told you, deoxyribonucleotides itself is made up of three units: a phosphate group, a sugar, which is deoxyribose sugar in case of DNA, and a nitrogenous base. So, here in this nucleotide, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन। सो इसी के बेसिस पर, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप और शुगर तो सभी न्यूक्लियोटाइड्स में कॉमन है डीएनए की, तो जितना भी डिफरेंस आएगा न्यूक्लियोटाइड में वो किस बेस पर आएगा? ऑन द बेस ऑफ द शुगर। तो यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है एज नाइट्रोजनस बेस, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डीऑक्सी एडिनाइलेट। एडिनाइलेट मीन्स विच हैज एडेनिन एज द नाइट्रोजनस बेस। तो ये बन गया आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम रहेगा डीऑक्सी एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। तो फिफ्थ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है मोनोफॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन पर मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है और साथ ही साथ डीऑक्सी, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ क्या अटैच्ड है? एडिनोसिन अटैच्ड है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। तो ग्वाइनाइलेट का मतलब क्या हुआ? जिसमें ग्वानिसिन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ग्वानिन प्रेजेंट रहेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डीऑक्सी ग्वानोसिन। नेक्स्ट इज डीऑक्सीथाइमिडीन, एज आई टोल्ड यू, जिसमें थाइमीन प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बी डीऑक्सीथाइमिडीन। ऐसे ही डीऑक्सीसाइटिडिन, जिसमें की साइटोसिन प्रेजेंट रहेगा एज द नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड में अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर राइबोस शुगर आ जाएगा इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप वैसे ही कॉमन रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जिसमें एडिनोसिन रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज, अगेन यहाँ बात करेंगे एडिनाइलेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, जबकि यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्वानालेट, दैट इज ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, जिसमें कि ग्वानोसिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वानिन है यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ऐसे ही जब यूरेसिल प्रेजेंट है एज द नाइट्रोजनस बेस, तो हम उसे कहेंगे यूरिडिन, यूरिडाइलेट कहेंगे, यूरिडिन 5' मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही सीएमपी, यहाँ पर सीसीएमपी है विच इज कॉल्ड एज, जिसमें कि प्रेजेंट है आपके पास शुगर है, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और साथ ही साथ साइटोसिन, साइटोसिन प्रेजेंट है एज द नाइट्रोजनस बेस, so it will be called as साइटिडिन। तो ये चार टाइप के हमारे पास आ गए राइबोन्यूक्लियोटाइड और इसी तरह से चार टाइप के हमारे पास आ गए हैं द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स, जिनके अंदर से एडिनाइन, जो डीऑक्सी एडिनोसिन है यहाँ पर, जिनका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रहेगा डीऑक्सी एडिनाइलेट, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है। सो दिस पिंक कलर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशली मेंशन किया इसीलिए कि जो पिंक कलर से डिनोट किया जा रहा है वो है न्यूक्लियोसाइड, राइट, और जिसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया जाए तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। चलिए, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो जिसे हम कंपेयर करते हैं स्टेयरकेस से, दिस मॉडल ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स मॉडल ऑफ बी डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो ये दो आपको यहाँ पर स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, और ये दोनों मूव करते हैं फ्रॉम 5' टू 3' एंड फ्रॉम 3' टू 5' इन द एंटी पैरेलल मैनर, एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं, जिनमें कि यहाँ पर आपको जो स्टेयर केस में स्टेयर्स जैसे नजर आ रहे हैं, दीज आर द नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 पेयरिंग कर रहे हैं आपस में, जबकि ये जो रेलिंग जैसा है जिसे हम स्टेयर केस से कंपेयर करेंगे, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट से ही आपका पूरा जो यहाँ पर बना हुआ है शुगर फॉस्फेट्स का बना हुआ है डीएनए के अंदर। सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, एज आई टोल्ड यू, cytosine pairs with guanine with a triple bond, thymine pairs with adenine with a
डबल बॉन्ड। और यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, विच इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड।